Good morning, everyone. This is the sum we will do today. R Limited and S Limited decided to amalgamate and form a new company, T Limited. The following are the summarized balance sheets of R Limited and S Limited as on 31st March 2017. Share capital इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो 80 लाख है, उसमें से अगर हम डिवाइड करते 100 से तो वी गेट 80,000 शेयर्स. 80 लाख में व्हेन वी divide by 100 we get 80,000 shares. 75 lakh divide by 100 we get 75,000 shares. 12% preference shares of ₹100 each. 30 lakhs when we divide by 100 हमें 30,000 shares मिलेगा. 20 lakhs of S Limited when we divide by 100 we get 20,000 shares. Investment allowance reserve, general reserve, profit and loss account, 10% debentures है 100 rupees का 6 lakh and 3 lakhs. And we have creditors. The asset side we have land and building, plant and machinery, current assets में stock, debtor, cash and bank. Then we have additional information given. In the additional information, T Limited will issue 5 equity shares for each equity share of R Limited. So R Limited का each मतलब 1 शेयर के लिए 5 शेयर मिलेगा T Limited से, और for each share of and 4 share for each share of S Limited. तो S Limited के एक शेयर के लिए हमें 4 शेयर मिलेगा T Limited से. R Limited के ईच शेयर, ईच मतलब 1 शेयर के लिए we will get 5 shares, and for 4 share we will get for each share of S Limited. And what is that? The issue price is 30 rupees and the face value is 10 rupees. Face value is 10 rupees and face value is 10 rupees and the issue value is 30 rupees. That means 20 rupees is the premium. अब 10 रुपया फेस वैल्यू का शेयर 30 रुपीज में दे रहे हो, आप 10 रुपीज फेस वैल्यू का शेयर आप कितने में इशू कर रहे हो? 30 रुपीज में. मीन्स अबाउट द फेस वैल्यू इज प्रीमियम. अबाउट द फेस वैल्यू इज प्रीमियम. Above the face value is premium. So what we will do, the next they have given preference shares. Next they have given preference shares of the two companies. Preference shareholders of the two companies are issued equivalent number of 15% preference shares of T Limited at a price of ₹150 per share. तो यहाँ पे हमें क्या करना है? सेम नंबर के 15 पर, यहाँ पे 12% प्रेफरेंस शेयर था, बट सेम नंबर मतलब 30 lakhs इन आर लिमिटेड 30 lakhs है, इस लिमिटेड में 20 lakhs डिवाइड बाय 100 करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स मिलेगा. नंबर ऑफ शेयर्स जितना भी है हम सेम नंबर ऑफ शेयर्स इशू करेंगे इन द टी लिमिटेड ऑल्सो, बट द इशू प्राइस इज 150. 100 रुपीज का शेयर है, 50 रुपीज प्रीमियम है.
Then we have 10% debenture holders of R Limited and S Limited are discharged by T Limited, issuing such number of 15% preference share, 10% sorry 10% डिबेंचर होल्डर्स के बदले में 15% डिबेंचर, 10% डिबेंचर के बदले में 15% डिबेंचर मिलेगा 100 रुपीज का. So as to maintain, again this is very important, so as to maintain the same amount of interest, so as to maintain the same amount of interest. मतलब यहाँ पे 6 लाख में 10% में जितना वैल्यू मिल रहा है, जितना अमाउंट मिल रहा है इंटरेस्ट का, हमें उतना ही इंटरेस्ट मिलेगा जब हम 15% डिबेंचर्स इशू करेंगे, तो भी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल नॉट चेंज. ऐसे टाइप का सम मैंने, ये वाला एडजस्टमेंट मैंने लास्ट सम में भी कराया है. सेम वे वी विल डू दिस सम ऑल्सो, दिस एडजस्टमेंट. पहले इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. अगर 10% में इतना इंटरेस्ट मिल रहा है तो 15% में, मतलब यही सेम इंटरेस्ट हम 15% में कैसे लेके आएंगे, दैट क्रॉस मल्टीप्लाई वी विल डू एंड वी विल गेट द आंसर. नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट अलावेंस रिजर्व को और 3 साल मेंटेन करना है. सो दिस इज अ स्टैट्यूटरी रिजर्व, सो वी विल हैव टू मेंटेन फॉर मोर 3 years. Calculate the amount of purchase consideration of R&S Limited and draw the balance sheet of T Limited. So let us start the solution. Let us start the solution. Calculation of purchase consideration. So 2 companies are there. Two column for amount. So particulars. What is it? R Limited and S Limited. So what है for the, यहाँ पे दोनों है, इक्विटी शेयर भी और प्रेफरेंस और पीसी दोनों को मिलता है. पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स का देखते हैं. इक्विटी शेयर होल्डर्स का क्या बोला है? फॉर आर लिमिटेड बोलते हैं एक ईच इक्विटी शेयर, ईच मतलब 1, ईच इक्विटी शेयर के लिए, ईच इक्विटी शेयर के लिए कितना मिलेगा? ईच इक्विटी शेयर के लिए 5 इक्विटी शेयर. तो हमारे पास एक इक्विटी शेयर को 5 इक्विटी शेयर मिलेगा. तो हमारे पास कितना टोटल इक्विटी शेयर है? सी 80 लाख डिवाइड बाय 100 मतलब 80,000. 75 लाख डिवाइड बाय 100 मतलब 75,000. सो पहले तो हम आर लिमिटेड का देखते हैं. आर लिमिटेड में देयर आर 80,000 इक्विटी, 80,000 इक्विटी शेयर. सो क्वेश्चन मार्क डालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 80,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 1, कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मिल रहा है? हाउ मेनी इक्विटी शेयर्स यू आर गेटिंग?
How many you are getting? Are you getting 4 lakhs? So 4 lakhs equity shares of रुपीज, एक शेयर 10 रुपीज का है पर इशू 30 में हो रहा है, ऑफ ₹10 ईच इशूड एट ₹30. सो 4 लाख इंटू 30 करेंगे तो हमें मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को देना है 1,20 lakhs. So we got the amount for R Limited. Same way, एक इक्विटी शेयर के लिए कितना मिलेगा? देखो आर लिमिटेड में, सॉरी आर लिमिटेड का हो गया, एस लिमिटेड में फॉर ईच शेयर 4 इक्विटी शेयर मिलने वाला है. तो विल राइट, एक के बदले में 4 शेयर मिलने वाला है. तो टोटल कितना है? 75 लाख डिवाइड बाय 100, दैट इज 75,000 इक्विटी शेयर है. तो उसके बदले में कितना मिलेगा? We will have to do a cross multiplication. तो 75,000 into 4 divide by 1. How much are you getting? 3 lakhs. So 3 lakh equity shares of ₹10, बट इशू प्राइस बोला है 30 रुपीज़ है, मतलब 20 रुपीज़ का प्रीमियम, इशूड एट ₹30. तो 3 लाख इंटू 30 करो. हाउ मच यू आर गेटिंग? 3 लाख इंटू 30, आर वी गेटिंग 90 lakhs? 3 lakhs इंटू 30. सो ये भी मिल गया. अब हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स के उसमें जाते, बिकॉज पीसी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी मिलेगा. और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए लेट अस सी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए क्या बोला है कि 2 companies, preference shareholders of 2 companies are issued equivalent number of 15% preference shares of T Limited at a price of 150. तो एक सेम नंबर मिलने वाला है. तो डिवाइड बाय 100, 30 लाख डिवाइड बाय 100, 30,000, 20 लाख डिवाइड बाय 100, 20,000 शेयर, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स तो सेम रहने वाला है. तो कितना है? 30,000. एक में आर लिमिटेड में 30 लाख है, डिवाइड बाय 100 किया तो 30,000. लेकिन क्या मिलेगा यहाँ पे? प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 इशूड एट ₹150. सेम वे एस लिमिटेड में 20 लाख है, तो डिवाइड बाय 100 मतलब इट विल बी 20,000 इशूड एट ₹150. तो ये मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 30,000 इंटू 150 करो. 30,000 इंटू 150, दिस विल बी 45 lakhs. And 20,000 into 150, this will be 30 lakhs. With this हमें पीसी मिल गया. पीसी सिर्फ यही 2 लोगों को देंगे, 1,65 lakhs and 90 and 30 is 1,20 lakhs. तो इसके बाद आफ्टर पीसी दे हैव आस्क्ड अस टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट. पीसी के बाद हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करने बोला गया है.
So let us prepare the balance sheet. बैलेंस क्या नाम है? कंपनी का नाम है मिसेस टी लिमिटेड. बैलेंस शीट as on 1st April 2017. 1st April 2017. अमाउंट के लिए चाहिए, नोट्स टू अकाउंट के लिए. सो पर्टिकुलर्स, नोट्स टू अकाउंट एंड रुपीस. सो सबसे पहले what we will have to do, equity and liabilities. उसमें हम लोग लिखते हैं शेयर होल्डर्स फंड. उसमें लिखते हैं शेयर कैपिटल. फिर शेयर के बराबर था शेयर कैपिटल और क्या है, रिजर्व्स एंड सरप्लस. सो यहाँ पे नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, तो इधर हम आ जाएंगे नोट्स टू अकाउंट में. नोट्स टू अकाउंट में पहला वाला नोट है शेयर कैपिटल का. तो शेयर कैपिटल अभी हमारे पास दोनों कंपनी का मिला के कितना शेयर हो गया, 4 लाख और 3 लाख. कितना हो जाता है, इसे लिख लेते हैं 4 लाख आर लिमिटेड का प्लस 3 लाख एस लिमिटेड का, दोनों को मिला के हमारे पास हो जाता है 7 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. बिकॉज एक शेयर 10 रुपीज़ का है. 20 हमने 30 रुपीज़ में इशू किया, बट 20 रुपीज़ उसमें प्रीमियम है. क्वेश्चन में बराबर दिया है, देखो फेस वैल्यू कितना है एक इक्विटी शेयर का, 10 रुपीज़. फेस वैल्यू ऑफ एट ₹30 हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच. एक शेयर 10 रुपीज़ का है, बट हमने 30 रुपीज़ में इशू किया है, तो यहाँ पे तो हमेशा फेस वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा ये शेयर्स, ये हो जाएगा 70 lakhs. ये हो जाएगा 70 lakhs. इसके बाद हमारे पास प्रेफरेंस शेयर भी है. प्रेफरेंस शेयर कितना है, देखो 30,000 आर में एंड 20,000 एस में, दोनों को मिला के 50,000 होता है. तो 50,000 15% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100. ये 150 मतलब 50 रुपीज़ का प्रीमियम में दिया है. 150 मतलब 100 रुपीज़ का शेयर है, बट इशूड एट 150 है. 50 रुपीज़ इज अ प्रीमियम. सो इसको भी ऐड मल्टीप्लाई करो. 50,000 इंटू 100, हाउ मच विल इट कम टू, 50 lakhs. This will come to 50 lakhs. So दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1,20 lakhs. तो शेयर कैपिटल मिल गया 1,20 lakhs. अब नेक्स्ट हम लोग को निकालना है, नोट नंबर 2, रिजर्व्स एंड सरप्लस. तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम. सिक्योरिटीज प्रीमियम है,
तो सिक्योरिटीज प्रीमियम हमने इक्विटी शेयर को, यहाँ पे हम देख सकते हैं इक्विटी शेयर 7 lakhs है, उस पे हमने 20 रुपीज़ का प्रीमियम लिया है। दोनों 4 लाख में भी 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ में इशू किया है ना, तो इसमें तो इक्विटी शेयर्स में 20 रुपीज़ का प्रीमियम है, और जो प्रेफरेंस शेयर्स है उसमें 50 रुपीज़ 150 रुपीज़ में इशू किया। देख रहे ऊपर हम लोग ने देखा इक्विटी शेयर सब 30 रुपीज़ में इशू किया, इक्विटी शेयर 30 रुपीज़ में इशू किया, और प्रेफरेंस शेयर इशू किया 150 रुपीज़ में, तो 50 रुपीज़ का प्रीमियम हुआ। तो हम लोग ऐसे करेंगे तो हमें दोनों का प्रीमियम आ जाएगा। 7 लाख इंटू 20, 7 लाख इंटू 20 इज हाउ मच? 7 lakh into 20 and 50,000 into 50, देखो कितना आ रहा है? 7 lakh into 20 is how much? Is it coming to 1 crore 40 lakhs? It is coming to 14 lakhs. It is coming to how much? 1 crore 40 lakhs. And how much is 50,000 into 50 coming? It is coming to 25 lakhs. So how much will the total come? The total will come to 1 crore 65 lakhs. Total is 1 crore 65 lakh. And after this security premium के बाद हमारे पास क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम के बाद हमारे पास क्या है? वी विल हैव टू सी, हमारे पास और कोई रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम के अलावा नहीं होगा। और हमें एक और चीज़ है, यहाँ पे देखो इन्वेस्टमेंट अलावेंस रिजर्व है। वी हैव इन्वेस्टमेंट अलावेंस रिजर्व, एंड इन्वेस्टमेंट अलावेंस रिजर्व को और 3 साल मेंटेन करने बोला है, और 3 साल मेंटेन करने बोला है, टू बी मेंटेन्ड फॉर 3 more years। तो इसके लिए हमें वर्किंग नोट में वी विल हैव टू प्रिपेयर अ वर्किंग नोट में वी विल हैव टू प्रिपेयर एक तो ये स्टैट्यूटरी रिजर्व के लिए एडजस्टमेंट, स्टैट्यूटरी रिजर्व के लिए एडजस्टमेंट है अमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट allowance reserve. How much is the amount? दोनों को ऐड करके इट इज 10 lakhs। दोनों कंपनी का मेंटेन करना पड़ेगा, तो इट बिकम्स 10 lakh। तो ये कितना हो जाएगा? इधर ब्रैकेट में लिखा 5 lakh plus 5 lakh which is equal to 10 lakh। तो इसका हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, हमारे पास है अमालगमेशन और हमारे पास है इन्वेस्टमेंट
अलावेंस रिजर्व 10 लाख, या अमालगमेशन एडजस्टमेंट तो ब्रैकेट में दिखाना पड़ेगा, और ये बिकॉज इट्स इन द डेबिट साइड, तो आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा 1,65 लाख। तो यही हम इधर भी लिखेंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना है 1,65 लाख। तो इसके बाद हम लोग आते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज में डिबेंचर होना चाहिए, डिबेंचर को भी लिया है देखो, 10% डिबेंचर holders of R Limited and S Limited are discharged by T Limited issuing, see यहाँ पे 10% debenture holders of R Limited and S Limited are discharged by T Limited issuing such number of 15% debentures of 100 each so as to maintain the same amount of interest। तो यहाँ पे बोलते 10% डिबेंचर होल्डर को 15% डिबेंचर मिल रहा है, लेकिन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो पहले मिलता था अभी भी वही मिलना चाहिए। तो पहले आर लिमिटेड का करते हैं। आर लिमिटेड का कितना डिबेंचर है, 10% डिबेंचर था, उसमें हमें क्या देना है, देखो 6 लाख का एक मिनट रुको, 6 लाख का व्हाट इज 10% डिबेंचर, इट इज 6 लाख, 10% डिबेंचर इज 6 लाख। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 10% डिबेंचर्स कितना था 6 लाख। अभी हमें क्या मतलब इंटरेस्ट कितना हुआ, इंटरेस्ट हो गया 10% निकालो 6 लाख का कितना होता है, इंटरेस्ट हो गया 60,000। ये कैसे मिला, 10% ऑफ 6 लाख, ये 60,000 हो गया। तो वो आगे बोलते हैं 15% में भी यही इंटरेस्ट आएगा, 15% में भी यही इंटरेस्ट आना चाहिए। बोलते हैं हम जो 15% डिबेंचर इशू करेंगे ना तभी भी 60,000 का ही इंटरेस्ट आना चाहिए। क्वेश्चन में बोला है टू मेंटेन द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अभी 10% में हम जितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 15% में भी हमें उतना ही इंटरेस्ट पे करना है। तो इसका मतलब अगर 15% जो है 60,000 है तो 100% वैल्यू कितना रहेगा, अगर 15 ये इतना है तो 100% वैल्यू कितना रहेगा, टू अ क्रॉस मल्टीप्लाई 60,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 15। क्वेश्चन में बोला है कि हमें क्या करना है, हमें 60,000 ऐसा 15% इंटरेस्ट यही अमाउंट आना चाहिए। तो इसका 100% वैल्यू कितना रहेगा, 60,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 15। तो हमें कितना अमाउंट आएगा, हमें आएगा 4 लाख। तो डिबेंचर का वैल्यू कितना रहेगा, 4 लाख रहेगा आर लिमिटेड में। सेम वे एस लिमिटेड में भी देखो, एस लिमिटेड में कितना है डिबेंचर 3 लाख का। एस लिमिटेड में 10% डिबेंचर कितना था, 10% डिबेंचर्स वेर इक्वल टू 3 लाख। तो इसका इंटरेस्ट अमाउंट कितना रहेगा, इंटरेस्ट अमाउंट कितना रहेगा निकालो,
3 लाख का 10% कितना होता है? ₹30,000। तो अभी हमें क्या करना है? 15% में भी यही अमाउंट होना चाहिए, 30,000। तो 100%, अगर 15% वैल्यू इतना है तो 100% वैल्यू कितना रहेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 30,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 15। देखो कितना आ रहा है। हाउ मच आर यू गेटिंग? 30,000 into 100 divide by 15, we are getting how much? 2 lakhs। तो हमें ये दोनों अमाउंट मिल गया डिबेंचर का। 15% डिबेंचर, द ब्रैकेट में 15% डिबेंचर्स, 15% डिबेंचर्स कितना है? 4 लाख है प्लस 2 लाख है। तो कितना हो जाएगा इधर? इधर हो जाएगा 4 और 2 विच इज इक्वल टू 6 लाख। लेकिन ये यहाँ पे नहीं दिखाना चाहिए हमें। हमें ये किस पे दिखाना चाहिए? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और कोई बोरोइंग्स है डिबेंचर को छोड़ के लॉन्ग टर्म नेचर का? नहीं है। अभी हमारे पास सिर्फ क्रेडिटर्स है, हमारे पास सिर्फ क्रेडिटर्स है। तो इसके बाद हमें कोई भी एसेट का नया वैल्यू नहीं दिया है ना, कोई भी एसेट का नया वैल्यू नहीं दिया है, ओल्ड वैल्यू ही लेना है हमें। इसके बाद हमारे पास क्रेडिटर्स है। कहा गया वी विल गो टू द लाइबिलिटी। ये होने के बाद सी इज करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में हमारे पास ट्रेड पेबल्स है। ट्रेड पेबल्स दोनों का ऐड करो, दोनों का 25 लाख एंड 10 लाख। तो हमारे पास है 25 लाख एंड 10 लाख। 25 लाख प्लस 10 लाख दोनों कंपनी का ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा? ऐड करो। तो ये जब ये ऐड करेंगे तो इसके बाद हमें टोटल मिल जाएगा लाइबिलिटी का। अब सेकेंड हमें करना है असेट्स का। इसमें भी पहले आएगा नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स में भी पहले आएगा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो इसमें हमें दो चाहिए, टैंजिबल और इंटैंजिबल। तो यहाँ पे ना हमें एक चीज़ एक और एंट्री करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे कोई इंटैंजिबल असेट देखने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में अगर यहाँ पे अगर हमें कैपिटल रिजर्व मिलता है तो हमारा लाइबिलिटी का अमाउंट भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? असेट्स टेकन ओवर का एक नेट असेट का एक स्टेटमेंट निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए वर्किंग नोट में जाते हैं। लेट अस गो टू द वर्किंग नोट and find out net assets taken over by which limited? T limited। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम इतना कॉलम बना लेते हैं, वो इसलिए क्योंकि हमें ऐड करके भी चाहिए, इसलिए।
तो क्या नाम है, आर लिमिटेड, एस लिमिटेड, दोनों को टेक ओवर किया है टी लिमिटेड ने। तो यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स। तो सबसे पहले ये असेट्स लिखते हैं, सारा असेट्स लेके गया है तो असेट्स लिखते हैं पहले। तो वो लिखना तो एकदम इजी है हमारे लिए। क्या करना है, सब कॉपी करना है। इसके बाद क्या करना है, ये कॉपी करना है। एक और नीचे जाना चाहिए। अभी हमें क्या चाहिए, इसका टोटल चाहिए सबका। कितना हो जाएगा ये टोटल, 45, 40, 85 ना। ये कितना हो जाएगा, किसी का नया वैल्यू नहीं दिया ना, तो हमें ओल्ड वैल्यू ही लेना पड़ेगा। 54 and 36 is how much, 54, this is 60, 90 and this is 3 lakhs। अभी ये सबको टोटल करेंगे और टोटल करने के बाद लेस करेंगे एक्सटर्नल बी, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में हमारे पास डिबेंचर्स है और हमारे पास क्रेडिटर्स। डिबेंचर्स का नया वैल्यू क्या मिला, 4 lakhs, और इसका मिला 2 lakhs। और क्रेडिटर का क्या है, 25 लाख, 10 लाख। अभी इधर को भी ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 लाख। तो अभी हमें चाहिए टोटल ये सबका, कितना टोटल है, 1,66,00,000। इधर मिला 1,27,00,000। ये तो मुझे वो टोटल नहीं चाहिए। फिर ये दोनों को ऐड किया तो कितना मिला, 29 lakhs। ये दोनों को ऐड किया तो मिला 12 lakhs। यहाँ पे मुझे एक और चीज़ लिखना था, अभी डायरेक्टली आई विल गेट द पीसी। तो अभी इस दोनों को माइनस करेंगे तो मुझे नेट असेट वैल्यू मिलेगा। नेट असेट वैल्यू कैसे मिलेगा, ये बी है और ये ए है। तो ए माइनस बी कितना आ रहा है, 1,37,00,000। और यहाँ आ रहा है 1,15,00,000, 1,15,00,000। तो अभी मुझे पीसी तो पता है, परचेज कंसिडरेशन तो मुझे पता है दोनों कंपनी का, हमने ऑलरेडी फाइंड किया 1,65,00,000, 1,20,00,000। तो यहाँ पे है 1,65,00,000 और यहाँ पे है 1,20,00,000।
20 lakhs। मतलब जो डिफरेंस है, डिफरेंस जो है वो क्या है? अब देखो मुझे बताओ, जहाँ पे हमें सिर्फ 1,37,00,000 देना था, जहाँ पे हमें सिर्फ 1,37,00,000 देना था आर लिमिटेड को, हमने 1,65,00,000 दिया। मतलब हमने, मतलब टी लिमिटेड ने ज्यादा पैसा पे किया। यहाँ पे भी नेट एसेट वैल्यू वॉज ओनली 1,15,00,000, बट टी लिमिटेड ने पीसी में 1,20,00,000 पे किया, 1,20,00,000 पे किया, मतलब ज्यादा पे किया। आप अगर परचेसिंग कंपनी ज्यादा पैसा पे करता है तो वो क्यों एक्स्ट्रा पैसा देता है? वो एक्स्ट्रा पैसा पे करता है फॉर द गुडविल ऑफ द ओल्ड कंपनी। जो बंद होने वाली कंपनी है उसको उसका जो गुडविल उसने एस्टैब्लिश किया है उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस? हियर द डिफरेंस इज 28 lakhs and here the difference is 5 lakhs। ये डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस इज नथिंग बट गुडविल। अगर उल्टा होता, ज्यादा अगर कम पे करते, नेट एसेट वैल्यू से कम पे करते पीसी, तो नया कंपनी अगर कम पे करता है, परचेसिंग कंपनी अगर कम पे करता है तो इट इज कैपिटल रिजर्व। बट अगर परचेसिंग कंपनी एक्स्ट्रा पे करता है ओल्ड कंपनीज को, वेंडर कंपनीज को, अगर वेंडर कंपनीज को एक्स्ट्रा पे किया, दैट इज ऑलवेज फॉर द गुडविल। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा? दोनों को ऐड करेंगे 28 और ये, सॉरी 28 एंड 5 लाख इज हाउ मच? 33 लाख इज द टोटल गुडविल। तो मुझे गुडविल यहाँ पे चाहिए था इंटैंजिबल में, इंटैंजिबल में एक ही है, दैट इज गुडविल। गुडविल का अमाउंट कितना मिला? टोटल मिला 33 lakhs। अब हमें क्या चाहिए? हमें टैंजिबल एसेट्स भी चाहिए। टैंजिबल एसेट्स क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, 85 लाख एंड 50 लाख। तो यहाँ पे टैंजिबल के लिए हम चाहिए तो एक नोट बना सकते हैं, थर्ड नोट, टैंजिबल एसेट्स। टैंजिबल एसेट में हमारे पास है लैंड एंड बिल्डिंग और हमारे पास है प्लांट एंड मशीनरी। कितना अमाउंट है दोनों का? 85 एंड 50। तो इधर लिखेंगे 85 लाख 50 लाख। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 85 लाख एंड 50 लाख को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1,35 लाख। तो इधर लिखेंगे टैंजिबल फिक्स एसेट कितना है? ये भी हो गया। अभी हम क्या करेंगे? अभी हम बी करंट असेट्स, करंट असेट्स में हमारे पास क्या है? हमारे पास इन्वेंट्रीज है, हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल है और हमारे पास है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जरा देखते हैं टोटल तीनों का कितना है। टोटल स्टॉक का, डेटर का और कैश एंड बैंक का 65 लाख, 90 लाख एंड 3 लाख। तो विल राइट हियर 65 लाख, 90 लाख एंड 3 लाख। इसके साथ हमारा असेट का टोटल भी कंप्लीट हुआ। नाउ टेक द टोटल, हाउ मच यू आर गेटिंग? 1,35 लाख, 33 लाख, 65, 90 एंड 3 लाख। सबको ऐड करने पे हमें मिलता है
3 crore 26 lakh. Same way liability side में 1 crore 20 lakhs, 1 crore 65 lakhs, 6 lakh and 35 lakh should also give a total of 3 crore 26 lakh. With this, what has happened? Our problem has been solved and with the balance sheet getting tallied. Balance sheet getting tallied. So with this, the sum is done. Thank you very much, everyone.